Good afternoon, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Sorry. Good morning. I meant to say good morning. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning to everybody. Okay, so today we will be doing the concluding part of the Animal Farm. Let me just share the screen with all of you. Any questions, by the way? इस पे कोई जो YouTube पे जो वीडियो क्लिप था वो क्या सबने देखा है? No, sir. नहीं, तो क्लास में भी दिखाए थे। अब क्या करना होगा मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए? सर लिंक भेज देते सर। ठीक है। Just give me a moment while I Four legs good, two legs bad. Can you see the screen right now? Yes, sir. Yes, sir. Just give me a moment. I'm preparing some to share with There you go. Please see this particular movie and you will enjoy it. And there might be some questions also. आपके दिमाग में जो आएगा. I think all of you have received the link, right? Okay, sir. Yes, sir. Can you all see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, we were, some of the characters, character sketch के बारे में भी आ सकता है. If you have seen the questions, the questions जो होता है कि किसी का जो leading character है, उसके character के बारे में भी पूछा जा सकता है. Write a character sketch of Napoleon. So you have to be able to write that Napoleon was always a destructive person. He never wanted to see, he never had any goodwill for the animals in the animal farm. He was, right from the beginning, शुरुआत से ही, right from the beginning, he was bent on exploiting the animals. In the end, the animals could not distinguish
who was a bigger exploiter? Human beings, yani Mr. Jones, human beings, or Napoleon himself? So who was a bigger exploiter? They could not say. तो इस तरह का exploitation, तो ये character हुआ उसका. He was evil. He did not stand any opposition. कोई भी opposition या कोई विरोध करने का या कोई दूसरी राय रखने वाला अगर सामने आता था तो नेपोलियन उसको बर्दाश्त नहीं करता था. He had a dictatorial attitude. यानी dictator के तरह एक just like a dictator, he would function, and he had assumed the role of a leader. Leadership वाले role पे भी पहुंच गया था. So this was, the sad part. So last time we had done the plot summary. We had completed all the stories, Beasts of England and the animalism. तो ये सब थोड़ा सा जरूरी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. Animalism के क्या principles थे? The most important of them was that all animals are equal. But later on, it was amended. उसमें amendment किया, बदलाव ला करके उसको क्या कर दिया? All animals are equal, but some are more equal than others. फिर बहुत सारे इसमें animalism के principles पे. Let me just take you through the animalism principle. ये जानना जरूरी है. I want to discuss that separately, अलग से. Just give me a moment. Yes. ये देखिए, animalism एक philosophy था, एक way of life था, सोचने का तरीका. In the philosophy of Excuse me, sir. yes. सर कोई वेटिंग में वेट कर रहा है, उसका नेटवर्क इशू था, कट गया था, एक बार चेक कर लीजिए ना. अभी तो मैंने किसी को अलाउ किया है, अभी मेरे को नहीं दिख रहा है कोई वेटिंग में, लेकिन फिर भी हाँ है तो देवाशीष. Let's look the philosophy of animalism जिन लोगों ने बनाया था. The philosophy of animalism. One moment. Yes. So ये क्या कहता है? In the philosophical subdiscipline of ontology, animalism. Let's see what ontology means. Ontology is the branch of philosophy that studies concepts such as existence, being, becoming, and reality. ठीक है? तो सच्चाई, हम क्यों exist करते हैं, हम क्यों हैं यहाँ पे इस दुनिया में, हमारा काम क्या है, तो ये उस branch of philosophy. So animalism is a theory of personal identity that asserts the humans, persons, are animals. The concept of animalism is advocated by philosophers Eric T. Olson and Paul Snowden, Stephen Blatty. क्या ये सब names हैं? Well, and this was, let me just check. ये animalism का ये हुआ, philosophy of animalism. लेकिन यहाँ पे जो कमांडमेंट्स लिखे गए थे, कमांडमेंट्स यानी एक लगभग संविधान बना था, और बाद में बहुत कन्वीनियंटली उसमें बदलाव कर दिया गया. इसमें इन लोग जो पिग्स थे, उन लोगों ने एक तरफा, without involving anybody else, they made amendments or changes.
ये देखिए, दिस इज द एनिमलिज्म का जो ये आदमी को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें कहानी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक मिनट, just 1 minute please. Okay, so the pigs, यानी ये pigs के जो टीम था, Snowball, he was a nice guy, लेकिन इसको वहां से भगा दिया गया। So the pigs, Snowball, Napoleon and Squealer adapt old Major's ideas. Old Major जो सबसे बुजुर्ग था, उसके आइडियाज इन लोगों ने अडेप्ट किए into a complete system of thought, एक विचारधारा, system of thought, which they formally named animalism, an allegoric reference to communism. यानी communism के बारे में इससे दोनों में रेफरेंस था, एक दूसरे को वो आप रिलेट कर सकते थे, the principles of communism and the principles of animalism, not to confuse with the philosophy of animalism. Soon after, Napoleon and Squealer partake in activities associated with the humans. यानी वो गतिविधि करने लगे जो मनुष्य करते थे। कौन सी गतिविधि? शराब पीना, ड्रिंकिंग अल्कोहल, स्लीपिंग इन बेड्स। पहले ये था कि जानवर अपने अस्तबल में रहेंगे, यू डोंट नीड बेड्स टू स्लीप, लेकिन वो लोग धीरे धीरे अपना जो मिस्टर जोन्स का जो बेड था, उसमें वो लोग सो कॉल्ड लीडर्स आराम से उसमें सोने लगे। एंड ट्रेडिंग भी, जो बॉक्सर था या जो घोड़ा, वो चोटीला हो गया था, was injured, so he was sold to the knackers, कसाई को बेच दिया गया। वो ट्रेडिंग हुआ, he was traded. So yes, ये गतिविधि जो सिर्फ मनुष्य करते थे, पिग्स ने करना शुरू कर दिया, which was explicitly prohibited, यानी एकदम मना था। एनिमल्स जो है वो बेड में नहीं सोएंगे, मनुष्य के बेड में। एनिमल्स विल नॉट ड्रिंक अल्कोहल, जो 7 कमांडमेंट्स में लिखा हुआ था। लेकिन स्क्वीलर जो है वो बहुत बड़ा ओरेटर था। ओरेटर मतलब भाषण देकर के लोग को मंत्र मुग्ध कर सकता था, लोगों को विश्वास दिला सकता था। स्क्वीलर वो कैरेक्टर था। स्क्वीलर इज एम्प्लॉयड टू ऑल्टर the 7 commandments. Alter मतलब उसमें बदलाव लाना, amendment लाना। Commandments to account for his humanization. Humanization मतलब मनुष्यीकरण। पहले वो जानवरों का था, लेकिन उसको मनुष्यीकरण कर दिया गया। Humanization. An allusion to the Soviet government, revising of history in order to exercise control. ये भी सोवियत गवर्नमेंट से मिला हुआ। कि वहां भी सोवियत गवर्नमेंट की, कम्युनिस्ट, उन लोगों ने इतिहास को बदल दिया लोगों पे राज करने की। नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, और सब में झूठे चीजों को वर्णित किया गया। लेकिन ओरिजिनल 10 कमांडमेंट्स क्या थे, ये जानना चाहिए। उस मूवी को अगर आप देखेंगे, जिसका लिंक मैंने भेजा, तो उसमें भी दर्शाया गया। बट द ओरिजिनल कमांडमेंट्स आर व्हाटएवर गोज अपॉन 2 legs is an enemy. Whatever goes upon 4 legs or has wings is a friend. अब आप कह सकते हैं कि मुर्गी या बत्तख, वो भी तो एनिमल फार्म के मेंबर्स थे, है ना, सदस्य थे, तो उनके पास तो 2 ही पैर थे, उस हिसाब से तो उनको दुश्मन होना चाहिए। लेकिन नहीं, उसमें एक और क्लॉज, या तो 2 पैर या पंख हैं उनके। बत्तख, मुर्गी, ये सब के पंख थे, इसलिए वो एनिमी में नहीं फिट करते थे। एनिमी में सिर्फ मनुष्य फिट करता था। बाद में वो भी बदल दिया नेपोलियन ने,
मनुष्य से दोस्ती किया और जानवरों को मनुष्य के हवाले कर दिया, बेच दिया. So what goes on four legs? नीतीश, इसका कौन सा, what were the lines? Four legs. Yes, sir. ये four legs क्या था उस गाने का? 2 legs bad, 2 legs bad or 4 legs good, sir. Four legs good, 2 legs bad. Yes. वही यहाँ पे. So what goes for 4 legs or has wings is a friend. No animal shall wear clothes. ये भी था. Clothes जो है वो मनुष्य पहने. हम लोगों को कपड़ा या वस्त्र पहनने की कोई जरूरत नहीं. तो उसमें लिखा गया था कि no animal will wear clothes. No animals shall sleep in a bed. ये भी उसमें कमांडमेंट में लिखा गया था कि या हम सब लोग अपने अस्तबल में सोएंगे या अपने अपने काउ शेड में सोएंगे या वहां पे सोएंगे. बेड पे कोई नहीं सोएगा. बाद में इसको भी अवहेलना किया गया और पिग्स जो थे वो मिस्टर जोन्स के बेड में सोने लगे. नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल. शराब नहीं पिएगा कोई भी जानवर. नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल. कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा. और फिर लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल. सब लोग बराबर हैं. So these commandments. नेपोलियन इसको भी बदल दिया था, सर. हाँ, वही तो हमारे अभी All नीचे आ animals रहे हैं ना. all animals are equal, but some animals are not equal. More equal than others. हाँ, वो भी है. तो ये होता है कि जो हम लोग जिसको नेता बनाते हैं, जिसको सत्ता सौंपते हैं और हम लोग वोट दे करके उसको नेता बनाते हैं, वो हम ही लोगों से गद्दारी करने लगता है. हम ही लोग को बेवकूफ बनाने लगता है. और ये पहले भी होता आया. कब कितनी पुरानी कहानी थी और उसमें जो चीज वर्णन है वो आज का लग रहा है कि समाज का सच्चाई है. So the commandments also distilled into maxim. 4 legs good, 2 legs bad, which is primarily used by the sheep on the farm. जो भेड़ थे वो कह रहे थे. Often to disrupt discussions and disagreements between animals on the nature of animalism. जब दो पक्षों में झंझट फंस रहा हो तो शांत करने के लिए जितने भेड़ थे वो लोग ये गाना गाने लगते थे ताकि टेंशन डिफ्यूज हो जाए, टेंशन कम हो जाए. Later, Napoleon and his pigs secretly revised some commandments. कुछ commandments को उन्होंने बदल डाला to clear themselves. यानी वो खुद शराब पीते थे तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, उन्होंने बदल डाला उसको. कैसे देखते हैं हम लोग नीचे. और मेनली वो अपने आप को न्याय उचित समझा रहे थे. नो एनिमल्स शैल स्लीप इन बेड. ये पहले का कमांडमेंट था. उसमें क्या बदल दिया? विथ शीट्स. यानी बेडशीट जो होता है उसके बगैर आप सो सकते हैं, लेकिन बेडशीट अगर है तब आप उस बेड में नहीं सो सकते हैं. ठीक है. तो विथ शीट्स बाद में ऐड कर दिया उसने. नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल. शराब नहीं पीना, पहले यही था. उसमें ऐड कर दिया ज्यादा नहीं पीना है. टू एक्सेस. मतलब शराब पी सकते हैं, ज्यादा नहीं पी सकते. इन लोग पीते थे, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसको कैसे न्याय संगत करेंगे. तो हाँ भाई हमने चेंज कर दिया उसमें. नो एनिमल्स शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट कॉज. यानी अगर आपके पास कारण है तो आप मार सकते हैं. अब कारण न्याय संगत हो, न्याय उचित हो या अन्याय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्यों मारे उस जानवर को, तो आपने कारण दे दिया, बस वो काफी. कोई उस पर जुडिशियल कमेटी नहीं बैठेगा कि वो कारण जो आपने दिया वो सच था या झूठ था. तो इस तरह से इन लोगों ने बदलाव कर दिया. दिस वाज हाउ द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म वाज चेंज्ड, अमेंडेड. संविधान में संशोधन होता है अमेंडमेंट्स के थ्रू, वैसे यहाँ पे इसने संशोधन करा दिया. Eventually these are replaced with the maxims. All animals are equal, but some animals are more equal than others. बताओ ये मजाक नहीं है तो क्या है? All animals are equal, लेकिन कुछ जो है वो ज्यादा बराबर है. अरे मतलब ये मजाक है आज के डेट में भी.
बहुत जगह जहां पार्शियलिटी होती है वहां पे ये वो लाइंस को कोट किया जाता है. All animals are equal, but all employees are equal, but some employees are more equal than others. इसको इस टाइप में तो करके देते हैं. 4 legs good, 2 legs better. अब देख रहे हो 2 legs, क्योंकि बाद में जो pigs थे, आपने अगर इस कहानी में ध्यान दिया तो वो लोग कपड़ा पहनने लगे और वो लोग 4 पाय चौपाया के जगह पे 2 पैर पे चलने लगे और खड़े होकर के चलने लगे. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 legs good, 4 पांव बहुत अच्छा, लेकिन उससे अच्छा है 2 पांव. As the pigs become more human मतलब इंसान की तरह तो होने लगे, कपड़ा पहनने लगे, 2 पैर पे चलने लगे और ये वकूफ या किसी की जान का सौदा तक करने लगे बाहरी मनुष्यों से, ताश खेलने लगे, जुआ खेलने लगे. तो उन लोग का मनुष्यों की प्रवृत्ति उन लोगों में आ रही है. लेखक यही कहना चाह रहे हैं. मनुष्य को भगाया गया, मिस्टर जोन्स को. नाउ वी विल हैंडल, देयर विल बी इक्वालिटी, सब लोग बराबर होंगे, असमानताएं खत्म होंगी. लेकिन यहाँ पे फिर से वही विषमताएं, असमानताएं आ गई जानवरों बीच में. So this is an ironic twist to the original purpose of the 7 commandments, which was supposed to keep order, कानून, order लाना था उन 7 commandments को. से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू का है कि 7 निश्चय, वैसे ही एनिमल फार्म में था 7 commandments. So they were uniting animals को एक सूत्र में पिरो देता है. यूनिटी था उन लोगों में. Together against humans, मनुष्यों के अगेंस्ट वो एनिमल्स को खड़ा करता था. And preventing animals from following humans evil habits, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब मनुष्यों के बुरे प्रवृत्ति का ये था, bad habits. तो इसलिए उन जानवरों ने शुरू लिखा कि हम लोग ये बुरे हैबिट्स अडैप्ट या अडॉप्ट नहीं करेंगे. ये लिख दिया गया था. Though the revision of the commandments, Orwell demonstrates how simply political dogma can be turned into a malleable propaganda. Malleable मतलब तुम अपना ढोल खुद पीटो. Malleable मतलब श्योर. कोई ऐसा मेटल, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मेटल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेटल्स आर मेलायबल. यानी अगर आप उसको आप टकराएं कोई चीज से तो उसमें से आवाज, मेलायबल होता है कि इट कैन बेंड, जिस रूप में चाहे आप उसको रूप दे सकते हैं. मेलायबल यानी उसको तोड़ मरोड़ करके अपने को सूट करने के योग्य बना सकते हैं. Orwell's biographer, Jeffrey Myers, has written, virtually every detail has political significance. इस allegory में या इस story में एक complete political significance है. Political significance. And Orwell himself wrote in 1946, of course I intend it, जानबूझ के मैंने कटाक्ष किया है कम्युनिज्म पे, या जो सिस्टम था राजनीति का, पॉलिटिकल सिस्टम, मैंने कटाक्ष किया. So of course I intend primarily as a satire. Satire मतलब व्यंग्यात्मक कहानी को कहते हैं. ये वर्ड इसके बारे में जरूर लिखना होता है. Satire, what kind of a play? What is this? So this is a satirical play of the Russian Revolution. व्यंग किस पे कर रहा है? रशियन रेवोल्यूशन पे, या रशियन क्रांति पे. ये एक व्यंग है. And the kind of revolution, violent, conspiratorial, यानी कंस्पायर करना, साजिश करना दूसरे के ऊपर, साजिश को कहते हैं. And led by uncontrollable, power-hungry people,
and it can lead to change of masters. मालिक बदल जाते हैं, आज ये हैं तो सत्ता को पलट दिया उसने. Revolutions only affect radical improvement. So this is all about the जो क्रांति हुई थी रशिया में. लेकिन मेन कम्युनिज्म, उन लोगों ने भी रशियन रेवोल्यूशन में वहां के राजा को उखाड़ फेंका था और कम्युनिज्म की स्थापना हुई थी. शुरू तो हुआ था बहुत अच्छे, लेकिन सारे लोग स्नोबेल की तरह नहीं थे. Like Snowball was chased away. So similarly, they were also chased away. जो good doers थे, जो अच्छे लोग थे. So this was the principles of animalism. और अगर इसके कैरेक्टर्स की बात करें हम, तो जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, जैसे ओल्ड मेजर के बारे में भी लिखा हुआ है. You should study this. Old Major, although he had a very short role, important role था, लेकिन very short role. Napoleon, he is the mastermind. इसका बहुत main यही, he is the corrupt, self-appointed leader. इसने अपना नाम खुद ही दे दिया, अपने को मनोनीत खुद किया. Napoleon. And then Snowball, he was the good man. Squealer, the minister of propaganda. Propaganda कहते हैं किसी चीज को खूब भोल पीट पीट के लोगों में गाना, और अक्सर कुछ झूठे चीज को लोगों को खबर पहुंचे. The wrong ideas, the false ideas, जो सच्चाई नहीं. वो यहाँ पे रामराज है, अमन चमन है. वाकई अंदर वहां पे एनिमल फार्म में बहुत गड़बड़ था. All the animals were against Napoleon, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाता था. तो बाहर से देखने में वाह वाह बहुत बढ़िया, so nice, but actually if you went in, then you would find that it was not the true picture जो बाहर से दिख रहा था. So humans characteristics में एक Mr. Jones थे, a heavy drinker, who is original owner of the manor farm. असली में मालिक यही था. A farm in disrepair, यानी disrepair मतलब टूटा फूटा सब कुछ. With farm hands who often loaf on the job. Farm hands मतलब जो काम करने वाले कर्मचारी थे, वो लोग अपने काम में ही काम को छोड़ के और लोफर की तरह लोफ करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे बिना काम का. वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं कर रहे थे फार्म. और मिस्टर जोन्स को जार निकोलस II, यानी जो राजा था रशिया का, उसके तुलना किया गया. उसी को उन लोगों ने उखाड़ फेंका था, रशियन पीपल क्रांति में. यहाँ पे भी मिस्टर जोन्स को उखाड़ फेंका इन लोगों ने. और जो जार, जो वहां का राजा था, जार निकोलस, he was murdered along with the rest of his family by the Bolsheviks on 17th July 1918. The animals revolt after John drinks too much, so he does not care for them. वो परवाह ही नहीं करता है किसी को. Watch that movie. Mr. Frederick, ये एक और पड़ोस वाला एक किसान था. इसने गन पाउडर से जो विंडमिल बना रहे थे लोग, उसको उड़ा दिया. इसको ईर्ष्या हो रही थी. He was jealous, Mr. Frederick, and he was the tough owner of Pinchfield Farm. इन लोग का मैनर फार्म था और बगल में एक दूसरा फार्म था, उसका नाम था Pinchfield Farm. A small but well kept, छोटा था लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन्ड था. Well kept मतलब मेंटेनेंस उसका अच्छा था. Well kept farm, who briefly enters into an alliance with Napoleon. ये जो मिस्टर फ्रेडरिक था,
यही ना आकर के ताश खेलता था, जुआ खेलता था, और एक अलायंस मतलब डेवलप कर लिया था कि जो जानवर तुमको नहीं चाहिए चुपचाप हमको पार करा दो, हम तुमको पैसा देंगे। नेपोलियन भी मौका पा करके कुछ मुर्गी या कुछ और जानवर उनको मीट उट के लिए चोरी करके दे देता था मिस्टर फ्रेडरिक को। So the animal farm shares land boundaries with Pinchfield. दोनों का बाउंड्री एक ही था, एनिमल फार्म का और पिंचफील्ड का, मिस्टर फ्रेडरिक का। On one side of the Foxwood, on another, making animal farm a buffer zone between the two bickering farmers. वो दोनों farmers जो थे शुरू में, Mr. Frederick and Mr. Jones, they used to always fight with each other for some reason. So the animals of animal farm are terrified of Frederick as rumors मतलब जो खबर ये हो रहा था अफवाह कि सर। अफवाह, अफवाह वेरी गुड, अफवाह, as rumors या अफवाह ये था about him abusing his animals, यानी वो अपने जानवरों का जो फार्म में थे उनका तिरस्कार करता था। अब्यूजिंग मतलब हमेशा गाली देना नहीं होता है, वर्बल अब्यूज गाली देना होता है, लेकिन अब्यूजिंग, अब आपके पास एक भैंस है, उस भैंस को आप रोज सुबह में आप ले जाते हो तालाब में नहलाने के, लेकिन जब रास्ते में जहां तो उसको आप कम से कम 10-12 डंडा मारते, that is abusing that animal, not verbally, but you are hitting that animal, you are acting violently against that animal, so you are abusing that animal. ऐसा था उसके बारे में कि वो अपने जानवरों को बहुत दुर्व्यवहार करता था, वो अपने जानवर से। And entertaining himself with cockfighting. यानी वो अपने मनोरंजन के लिए क्या करता था, मुर्गों को लड़ाता था। ये बहुत क्रूएल खेल है, मैंने एक बार देखा है, मेरा मन खराब हो गया था। It's very bad, this particular cruel sport. उसके पैर में मुर्गों के लोग ब्लेड और चाकू टाइप का नोकीला बांध देते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को, और अगर किसी ने पैर से ये किया और पूरा उसको काट देता है, वहीं पे खत्म हो जाता है दूसरा मुर्गा। It's a very cruel sport. लेकिन ये आदमी, ऐसा रूमर था कि मिस्टर फ्रेडरिक जो है वो मुर्गों को लड़ाता था और मजे लेता था, एंटरटेन होता था। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मनोरंजन कैसे कर सकते हैं इसको। हाँ, देन कहाँ थे? सो कॉक फाइटिंग मतलब मुर्गियां आपस में नहीं लड़ती, लेकिन जो मुर्गे होते हैं वो एक दूसरे को देख के एकदम रोआ खड़ा करके अपने फेदर्स, रोआ कहाँ होता है उनमें, लेकिन अपने फेदर्स या पंख को खड़ा करके वो अटैक करते हैं एक दूसरे को। सो ही इज एंटरटेनिंग हिमसेल्फ विद कॉक फाइटिंग, अ लाइकली एलेगोरी मतलब रिलेट करना विद द ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस ऑफ एडोल्फ हिटलर। जैसे जानवरों को वो अब्यूज कर रहा है उनके राइट्स को, ठीक उसी तरह एडोल्फ हिटलर भी करता था। Napoleon enters into an alliance with Frederick to order to sell surplus timber. Timber किसको कहते हैं? लकड़ी का टुकड़ा। हाँ, लकड़ी का टुकड़ा, जो फर्नीचर बनाने के लिए जो होता है ना, उसको टिम्बर भी कहा जाता है, फर्नीचर बनाने का या दरवाजे खिड़की बनाने का। तो वो चुपचाप एक गुप्त समझौता कर लेता है उसके साथ कि हमारे फार्म पे जितने पेड़ उड़ जो हैं वो तुमको बेच देंगे। That Pilkington also sought. Pilkington यानी एक दूसरा बंदा, उसको भी चाहिए था। But is enraged to learn Frederick paid him counterfeit money. Counterfeit money यानी नकली नोट से उसका भुगतान किया फ्रेडरिक, यानी ये बहुत ही गड़बड़ आदमी था जिसने नेपोलियन को पैसा दिया लेकिन नकली नोट से। काउंटरफेट इसी को कहते हैं। Shortly after the swindling मतलब उसको बेवकूफ बनाना, चोरी करना, Frederick and his men invade animal farm. वो लोग धावा बोल देते हैं अपने आदमियों के साथ,
killing many animals and destroying the windmill. Windmill को भी बारूद से उड़ा देता है, ये वही लोग उड़ाते हैं, Mr. Frederick. So the brief alliance and subsequent invasion may allude. फिर एक दूसरा कैरेक्टर है, 5 मिनट अपने पास है ना, 10 बजे से आप लोगों का नेक्स्ट क्लास है ना? Yes, मुकेश, Yes, sir. नीतीश, 10-15 से 10-15 से. So Mr. सर Pilkington. 10-15 से है, लेकिन पिछले बार सर 10 बजे से क्लास स्टार्ट कर दिए थे सर। किसका क्लास? नीरज सर। अच्छा. So Mr. Pilkington, एक दूसरा कैरेक्टर, the easy going, but crafty. Crafty जानते हैं किसको कहते हैं? धूर्त को कहा जाता है, crafty. The cunning या धूर्त, उसको कहा जाता है. And well-to-do owner of Foxwood Farm. चालाक वो एक को. बगल है, किसको? कनिंग, क्लेवर को ही ना बोलते हैं. नहीं, क्लेवर और कनिंग में एक फर्क है बाबू. क्लेवर मतलब बुद्धिमान, वाइज, ठीक है, लेकिन कनिंग वो होता है जो अपना फायदा देखता है, दूसरों को फंसा दो तो फंसा दो. चतुर, अच्छा याद आ गया, धूर्त. चतुर. हाँ, चतुर हाँ. चतुर भी, हाँ चतुर कैसे, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा वर्ड है धूर्त. मतलब अपने को बचा लो, दूसरों को फंसा दो. सर अपना काम निकालना. हाँ. ओके सर. So he is crafty. Crafty भी बोला जाता है उसको, cunning भी बोला जाता है. And well-to-do owner of Foxwood Farm, a large neighboring farm, overgrown with weeds. अब एक और फार्म है इसमें, लेकिन उसमें खूब घास उगे हुए हैं. Weeds मतलब जंगली घास. Pilkington is wealthier than Frederick and owns more land. ज्यादा जमीन है इसका. But his farm is in need of care. ध्यान ही नहीं रखता उसमें. सोहनी भी नहीं करवाता है उसका. सोहनी तो कराना पड़ेगा ना, सब जंगली घास उगे हुए हैं. In need of care as opposed to Frederick's smaller but efficiently run. Frederick का जो फार्म था वो छोटा जरूर था, लेकिन बहुत ही efficiently, कार्यकुशलता से उसका संचालन या उसका जो रनिंग है, डे टू डे एक्टिविटीज, वो बहुत कार्यकुशलता, उसका बहुत efficient था, कुशल मैनेजमेंट. Although on bad terms with Frederick, दोनों किसानों में 36 का आंकड़ा था. Frederick and Pilkington is also concerned about the animal revolution. लेकिन एनिमल का जो उन लोगों ने मिस्टर जोन्स को भगा दिया, तो ये दोनों आपस में तो दुश्मन थे, लेकिन इन लोगों ने कहा कि अरे यार, कहीं ये जो क्रांति है जानवरों की, ये हम लोग के फार्म पे ना फैल जाए, क्योंकि अगर उन लोग के फार्म पे फैल जाता तो उनके जानवर भी इन लोग को भगा देते. तो ये लोग थोड़ा सा चिंतित थे. And Mr. Whymper, a man hired by Napoleon to act as a liaison between animal farm and human society. यानी human society, मनुष्य का जो सोसाइटी है, उससे और एनिमल फार्म के बीच में एक हस्तक्षेप करने, एक मध्यस्थता करने वाला, दोनों के बीच में, उसको मिस्टर विम्पर का नाम दिया गया. At first he used to acquire necessities that cannot be produced on the farm. भाई हर चीज तो फार्म से नहीं ना हो सकता है उत्पादन, कुछ चीज तो आपको बाहरी दुनिया से चाहिए. उसी के लिए मिस्टर विम्पर जो है, जिसको रखा गया था बाय नेपोलियन, तो वो जाते थे और वहां से सामान लेकर के आते थे. जस्ट एज डॉग बिस्किट. डॉग बिस्किट फार्म पे कैसे बनेगा? और नेपोलियन को चाहिए था अपने पालतू कुत्तों के लिए, जिनको खिला पिला के मुश्तंड बना रहा था और किसी पे लुलकार दे रहा था वो. तो वो डॉग बिस्किट, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स वो होता है जो रोशनी करने के लिए मोम चाहिए होता है. ये पैराफिन ऑयल होता है, पैराफिन वैक्स होता है, ये दोनों चीज होती है. तो जलाएं, तो ये सब चीज वो जो फार्म को जरूरत था लेकिन खुद उत्पादन नहीं कर सकते थे, तो बाहर से आता था. और वो काम था मिस्टर विम्पर का.
कि मनुष्यों की दुनिया से बाहर से लेकर के आए और फार्म पे सप्लाई करें। लेकिन बाद में मिस्टर विम्पर भी पैसा बनाना था उसको, तो पैसा मिले हमको, बस बाद में उसने क्या किया कि वो शराब और भी लाने लगा और लग्जरी आइटम्स, आराम हराम है वाला नारा जो था वो सब चला गया। लीडर्स के लिए, पिग्स के लिए वो अल्कोहल लाता था और लग्जरी आइटम्स, कपड़े लत्ते ये वो सब ला करके देने लगा बाहरी दुनिया से। दैट वाज मिस्टर विम्पर। सो थैंक यू एवरीबॉडी। आई थिंक वी विल हैव टू, आप लोग का क्या सुझाव है नेक्स्ट क्लास से क्या करें, बिकॉज विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द कंप्लीट सिलेबस। सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स? ग्रामर पर हाँ, ग्रामर का सर, पोर्शन हम grammar, लोग सर। टेक अप कर सकते हैं, ठीक है। होमोफोन्स और इस तरह की जो चीजें हैं वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। यस सर। Okay, so Okay, Nitish, sir. please do the Yes, sir. needful. Send me the. ठीक है। Thank you everybody। और ये जो थैंक यू सर। थैंक यू सर। entertain भी होइएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। Thank you, sir. Welcome all of you। Bye bye।